So when I was in class one, a helicopter landed in our school. Say, cadets and students were running after the helicopter, seeing it land in the fields. That was the day at 6 years of age I decided that I want to be a pilot, and that too a helicopter pilot. 3-4 दिन से सब मछुआरे they were missing. सुई भी नहीं सर, वो तिनके से भी ज़्यादा मतलब कम दिखाई देता है आपके जो वेव्स ऐसे ऊपर नीचे। तो मेरी ब्रीफिंग नहीं थी इनको घर छोड़ने की, तो मैंने रडार के अंडर कवर करते हुए उनको जाके घर पे छोड़ा। 50 meters from the ground there was a lot of noise from the rotors and we saw rotor RPM dwindling down और हम 50 मीटर से सर जमीन पे गिरे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द शो विन लाइफ लाइक ए वॉरियर। आज हमारे साथ जो हैं वो एक वॉरियर हैं जो हेलीकॉप्टर पायलट रहे हैं और इन्होंने वो रेस्क्यू एंड सर्च मिशन किया है इतने इंटेंस एनवायरनमेंट में, जो हम उन्हीं से सुनेंगे। और इन्होंने काफ़ी लोगों की जानें बचाई हैं उस ऑपरेशंस में। उसके साथ साथ इनको एयरफोर्स चीफ का कमेंडेशन कार्ड उन्हीं कामों के लिए मिला है। सो लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट पायलट मनीष कुमार फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। Manish, welcome to the show. Thank you, sir. Like a warrior. Thanks for inviting me. Yeah. So Manish, let's start with your early life. How did you came to decide that you want to join Sainik School and thereafter NDA? Sir, I was in Sainik School junior section. Oh, class 1 से class 5 is the junior section. So when I was in class 1, a helicopter landed in our school. Say. Okay. So we all cadets and students were running after the helicopter, seeing it land in the fields. So that was the day I thought it's a very beautiful toy. You can take it off anywhere, make it land anywhere. So that was the day at 6 years of age I decided that I want to be a pilot, and that too a helicopter pilot. Oh, that's great. That's great. And thereafter? So thereafter I asked people, how to become a pilot, what to do. I asked the teachers. So they said that you have to have a good physical fitness, and then you have to have good maths and good English. So you won't believe I used to read anything, whatever I used to lay my hands on. Then when I was in class 7th, I was reading something and the word popped up, sprain. Okay. So I did not know the meaning of the word sprain, SPRAIN. Okay. I asked my friends; they were also as intelligent as me. Nobody knew the meaning of the word sprain. Okay. So I asked the teachers, I asked my seniors also. They also didn't know the meaning. So it was some July 1982. So in the afternoon, I went to my English teacher house, and he must be sleeping in the afternoon. So I asked him, what is the? He asked me, why have you come here? I said, sir, I want to know the meaning of the word sprain. I was calling it sprain, not even sprain. So he said, you should have looked it up in the dictionary. I said, sir, I don't know the meaning of the word sprain. You are giving me another hard word called dictionary. I didn't even know what his dictionary is. So he took out his dictionary, he showed me how to take out the meanings from the words, and he told me, read a lot of papers, read the editorials, read the book called Antonyms and Synonyms, and I used to do this. And he said, make dictionary your habit. So I used to carry a dictionary in my pocket, and any time like assembly, wherever we were made to stand, I used to take it out, and you won't believe that from 7 to 8, I mugged up the whole dictionary. वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब बहुत ही रेयर बात है कि मतलब 6-7 क्लास में कोई बच्चा पूरी डिक्शनरी को मगअप करके। और I used to love words, sir, and that helped me in writing my books, Yeah, of course. So Manish, when you reached finally NDA and of course that Air Force Academy, how did it change your life? कुछ यादें हैं NDA की या Air Force Academy की? एनडीए की सबसे खूबसूरत याद है, मेरा बर्थडे था 25th Feb इज माई बर्थडे। दिस इज 1990। अच्छा। तो हमारे यहाँ जैसे हाउस कैप्टन होता है, एनडीए में स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन होता है। तो हमारे जो स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन थे उन्होंने कहा कि तुम्हारा बर्थडे तभी मनाएंगे जब हमारा क्रॉस कंट्री था उस दिन 25th Feb को। तो बोला कि अगर हम ट्रॉफी जीतेंगे तब हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे, नहीं तो नहीं मनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना जो स्टॉक देना उसके बाद मेरे को बुला लेना।
तो उन्होंने वो हाउ इज़ द जोश वाला जोश टॉक दिया बच्चों को। तब तक मैंने बड़ा सारा स्पीकर कमरे के वहाँ परेड ग्राउंड के बाहर रखा और उसमें वो गाना लगाया। अमिताभ बच्चन का एक फेमस गाना है, कितने बाजू कितने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी, जीतेंगे हम जी जान से। तो मैंने वो गाना सुनाया पहले, उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा कि कल क्या है, तो सबने बताया कि सर क्रॉस कंट्री है। तो मैंने कहा और क्या है, तो उन्होंने कहा कि सर पता नहीं। तो मैंने कहा पता नहीं, मेरा बर्थडे है कल और तुम्हारे स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन बोल रहे हैं अगर ट्रॉफी नहीं आई तो बर्थडे नहीं मनेगा। तो बर्थडे नहीं मनेगा तो क्या होगा, तो लोगों ने कहा मालूम नहीं। मैंने कहा कि बर्थडे नहीं मनेगा तो मैं बहुत दुखी होऊंगा, ठीक है, तुम मेरे को दुखी मत करना, तुम लोग भाग लेना कल प्लीज़। तो मेरे कहने पता नहीं क्या जादू हुआ कि वी गॉट द ट्रॉफी फॉर द ग्लाइडर, ट्रॉफी कहते हैं उसको। ग्लाइडर में क्रॉस कंट्री वहाँ से शुरू होती है। तो वी गॉट द ग्लाइडर एंड एवरीबडी हैड इम्प्रूव्ड हिज टाइमिंग्स। तो कौन सा स्क्वाड्रन था आपका? अल्फा स्क्वाड्रन। अल्फा स्क्वाड्रन। एंड यू वर अपॉइंटमेंट इन दैट? नहीं, आई वाज नॉट अपॉइंटमेंट। ओके ओके, बट इट वर्कड। इट वर्कड मोर देन द जोश टॉक, माय रिक्वेस्ट वर्ड कि मेरा बर्थडे मनाने देना। तो वी हैड अ सेलिब्रेशन धूमधाम से। I know. And thereafter, you must have gone to the Air Force Academy once got commissioned. Yes. So, what was the situation there? So, Air Force Academy was good. I have written in my book also. There's a chapter called I Am Lost. Okay. तो मैं नाइट फ्लाइंग में लॉस्ट हो गया था। Okay. तो you won't believe that like हमारा एक पॉइंट नॉर्थ होता था, तो वहाँ पे द एयरक्राफ्ट यूज्ड टू कम ऑर्बिट बिफोर दे वर आस्क्ड टू लैंड। तो एयरक्राफ्ट वे मेड टू ऑर्बिट नाइट फ्लाइंग में। तो ऑर्बिट करते करते व्हेन आई वाज आस्क्ड टू कम टू लैंड, तो आई व्हाटएवर द कंपास वाज शोइंग आई वाज फॉलोइंग दैट। तो मेरे को लगा कि एयरफील्ड नहीं दिख रहा है, तो आई ट्राई टू गिव ए कॉल, तो मेरा RTB वाज ऑन नॉट वर्किंग एंड देन आई चेक माई कंपास हैज स्टॉप्ड वर्किंग एंड आई वाज गोइंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज एयरफील्ड मेरे को दिखा नहीं था। तो थोड़ी देर में देखा, जब मैं नीचे करके सर ऊपर किया कंपास वगैरह चेक करने के बाद, तो देखा आई वाज इनटू क्लाउड्स एंड लाइटनिंग। माय कंपास इज नॉट वर्किंग, माय रेडियो कम्युनिकेशन इज नॉट वर्किंग एंड लाइक आई वाज लॉस्ट इन द थिंग। तो एंड मैं कॉल दे रहा था, फ्रैंटिक कॉल्स, टावर, माय कॉल साइन वाज 120। मैं कॉल दे रहा था टावर 120, देयर वाज नो रिस्पॉन्स। तो सडनली देयर वाज अ रिस्पॉन्स, 120 टावर। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रोफेशनल प्राइड आता है सर कहने के लिए कि आई एम लॉस्ट। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया RT पे, बाकी लोग भी सुन रहे थे कि आई एम लॉस्ट। तो then my instructor was sitting in the ATC, air traffic control. So he said, don't worry, we have you on radar, so I will get you down. So he got me down, sir. And it was a lesson for everybody. When you are lost, so you declare to the world that you are lost. Don't have that professional pride. So वही I've written in the book also कि life में कभी कभी आदमी lost हो जाता है सर, when you don't know what to do. So that is the time you seek help instead of doing something else. I know. That is so true in the life. So true in the life. And there are lot many people who are ready to help you. There are lot many people. You won't know help कहाँ से आ जाएगा. Yes. Provided you seek for that. You have to seek help for that. Yes. तो वो कंपास आपका मान लीजिए खराब हो गया, वाज इट ए मैनुअल कंपास, इलेक्ट्रॉनिक कंपास? इलेक्ट्रॉनिक कंपास, gyro ऑर्बिट करते करते ना, व्हेन यू आर ऑर्बिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एट टाइम्स द gyro टम्बल्स। तो gyro टम्बल हो जाता है तो कंपास गेट स्टक। तो रडार पे थे तो दे यूज्ड टू टेल मी कि इतना डिग्री बैंक दो, अब रोल आउट करो। तो वैसे करके मेरे को एयरफील्ड पे लेके आए। Finally you came down. Yeah. But you said you were out of RT also, radio communication. RT was not working suddenly because of the weather had packed up. तो weather के चलते RT was not working, तो थोड़ा सा वो RT वापस आ गया था। Okay. Because VHF, UHF communication can come back because of the weather. Yes. Okay. एक चीज़ यहाँ ये बताओ मनीष, viewers would like to know why did you choose only helicopter pilot rather than fighter pilot? सर मेरा एक ही एम था when I decided to become a helicopter pilot. वो मैंने कहीं मूवी में देखा था, हेलीकॉप्टर पायलट जाता है, कोई डूब रहा होता है, उसको रेस्क्यू करता है। तो मेरा एक ही एम था लाइफ में कि किसी दिन मैं किसी की जान बचाऊंगा। So that was the only. I didn't want to become a fighter pilot. I didn't want to become a transport pilot. My only aim in life was to save some life someday. So that is why I became a helicopter pilot. But in such a early age, how this purpose of life came in your mind कि I want to save lives? Because sir, I had seen हमारे समय में बाढ़ आती थी पटना वगैरह में, तो उसमें मैं कहीं TV पे देखा था
कि नीचे वो वायर इज़ देयर और किसी को उठा रहे हैं बीच पानी से. तो दैट वाज द रीज़न फॉर मी टू बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट. क्या बात है, क्या बात है. मतलब अर्ली इन लाइफ यू फाउंड योर पर्पज ऑफ लाइफ. सर आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू फाइंड पर्पस इन लाइफ. Yes. लोग तो 50-55 के हो जाते हैं तब भी उनको पता नहीं होता है पर्पस क्या है लाइफ का. नहीं, इस प्लेनेट से चले जाते तब भी नहीं पता लगता है. यू हैड ए वेरी नियर death experience when you were that Mount Abu rescue हाँ, mission. Huh? हाँ. What was that situation like and how it happened? Sir, Mount Abu, I'll just relate it because all the things. आपका next question आप जो पूछोगे उसका भी मैं जवाब पहले ही दे देता हूँ. We were doing troop induction in Bhuj, sir. Okay. तो हमारे डिप्टी फ्लाइट कमांडर साथ में थे. उन्होंने कहा कि एक सॉर्टी आई है आज शाम की और एक कल की सॉर्टी आई है बॉर्डर रेकी की. ठीक है, तो शाम में भुज जाना, ये माउंट आबू जाना है और कल उसके बाद यहाँ बॉर्डर रेकी के लिए जाना है. तो दैट वाज ऑन टुडे वाज द डे वी आर टॉकिंग वाज सैटरडे. तो संडे का ही बॉर्डर रेकी का था. तो मेरे को बोला तुम माउंट आबू वाला कर लो. तो मैंने कहा सर माउंट आबू के साथ साथ मैं कल यहाँ भी बॉर्डर रेकी के लिए भी जाना चाहूँगा. DGBSF का सॉर्टी था. तो ही टोल्ड मी नहीं मैं बॉर्डर रेकी मैं कर लूँगा. एंड ही वाज न्यू टू द प्लेस, न्यू टू द एरिया. तो मैंने कहा सर बहुत ट्रिकी होता है बॉर्डर रेकी करना. वी हैव टू फ्लाई एट 30 मीटर्स. हम लोग टेलीफोन केबल पकड़ के वी यूज्ड टू फ्लाई एंड टर्न अकॉर्डिंग टू द टेलीफोन केबल्स बिकॉज वहाँ पे GPS जैमिंग बहुत होती थी. तो एनीवे आई वेंट टू दिस प्लेस माउंट आबू इन द इवनिंग. तो जब हमारे यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम होता है, हेलीपैड इज़ नॉट लेट. तो वी आर सपोज टू बी डूइंग द सॉर्टी एंड लैंड ड्यूरिंग द सनलाइट. तो हम लोग वहाँ पे आई केम इन फॉर लैंडिंग. तो आई गॉट इन टू ए डस्ट बोल सर. वो जो हेलीकॉप्टर के डाउनवाश से पूरा धूल जो मिट्टी जो ये होती है. तो उसके बाद जब मैंने टेक ऑफ करने की कोशिश की तो आई जस्ट मिस्ड अ पोल. माइक्रोवेव टावर था वो हमें मुझे दिखा नहीं था. तो ही जस्ट मिस द माइक्रोवेव टावर. तो दैट वाज नियर डेथ एक्सपीरियंस. मतलब बगल से 10 मीटर दूर से वो माइक्रोवेव टावर निकला था. So what goes in the mind when you goes through such a experience of near death experience? क्या फीलिंग होती है उस टाइम? सर ये तो आई विल टेल यू, इससे भी जो खतरनाक एक्सपीरियंस था. हम लोग एयरफोर्स डे में एयरफोर्स मेला रखते हैं. तो मेले में क्या होता है कि द एयरफोर्स स्टेशन इज़ ओपन टू पब्लिक एंड वो ग्राउंड में हम लोग अपना वो एयरक्राफ्ट वगैरह रखते हैं और लोग आके फ़ोटो ये खींचते हैं जहाज़ में बैठ के. तो हमारे यहाँ एक जायंट व्हील लगाया हुआ था मेला ग्राउंड में. तो मेरे डिप्टी फ्लाइट कमांडर ने कहा कि एक एयरक्राफ्ट को प्लेस करना है इसके जायंट व्हील के बगल में. तो मैंने कहा कि सर मेरे को क्यों भेज रहे हो, ऐसे 2 मिनट का फ्लाइंग है कोई भी कर लेगा. ही सेड इट्स वेरी ट्रिकी, जायंट व्हील के एकदम बगल में लगाना है. तो आइदर यू गो और आई गो. तो एंड आई एम नोन फॉर माई आफ्टरनून नैप. से सबको पता है कि मेरे को आई नीड माई आफ्टरनून नैप. उस रात में कितना भी काम करा लो बस आफ्टरनून में सोने दो. तो उसने कहा कि एक लड़का, एक मिश्रा करके एक स्क्वाड्रन लीडर था जस्ट थोड़ा सा जूनियर मेरे से, उसके साथ करने को ले जाके जहाज़ प्लेस कर देना. तो आई गेव हिम द टेक ऑफ वो कर रहा था. तो मैंने कहा तुम टेक ऑफ करो बाकी लैंडिंग मैं कर लूँगा. तो ही वॉज टेकिंग ऑफ. तो वो टेक ऑफ करके बोला कि यार लेफ़्ट टर्न करके पूरा शहर देख के आते हैं. तो मैंने कहा मेरे को सोना है, ठीक है राइट टर्न करो, उससे शॉर्टकट है वहाँ से जाके करेंगे. तो ही वॉज नॉट विलिंग. तो वहाँ पे हमारे एक टर्मिनोलॉजी कहते हैं सर, आई हैव द कंट्रोल्स. ओके. तो वंस यू से आई हैव द कंट्रोल दैट मीन्स यू मीन बिजनेस. उसके बाद देयर इज नो भाईचारा, नो भाई बंदी और समथिंग. तो आई सेड आई हैव द कंट्रोल्स. तो मैंने आई हैव द कंट्रोल्स बोला. यू वर द सीनियर. आई वाज द सीनियर. तो ही वाज स्लाइटली जूनियर, फ्रेंड की तरह था. बट व्हेन आई सेड आई हैव द कंट्रोल दैट मीन्स आई टुक ओवर कंट्रोल्स. आई मेड दैट शॉर्टकट जो एक्चुअली कोई भी करता है. तो वहाँ से आए 50 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड there was a lot of noise from the rotors and we saw rotor RPM dwindling down. और हम 50 मीटर से सर ज़मीन पे गिरे. तो उसके क्या हुआ था कि एक इंजन का कपलिंग टूट के मेन गियर बॉक्स में घुस गया था and that was obstructing the rotors to move. Okay. तो वो गिरा और हम लोग पूरा ज़मीन में अंदर
1 मीटर अंदर सॉफ्ट ग्राउंड था, तो दैट टुक द इम्पैक्ट, तो 50 मीटर से हम लोग नीचे जाके गिरे। तो मैं वही उसको मजाक में कहा कि मेरी नींद से तुम्हारी जान बच गई, ठीक है, अगर मैं सोने का नहीं रहता तुम लंबा चक्कर मारते और तो 200 मीटर से गिर, हाँ तब तो क्रैश था सर। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हुए हैं। So my question still remains. What is the feeling that moment of time? The sense of relief, sir. A big sense of relief, and you thank your intuition. Yeah. I believe on intuition a lot, sir. Yeah. तो मेरा intuition हमेशा काम आता है, तो वो sense of relief was there. पूरा जहाज पूरा तेल उसका ऑयल लीक वगैरह हुआ था, तो a sense of relief and that joy of being alive is there. Of course. So you don't look back to the negative part of it. You look the positive part that at least survived. You have survived. You You survived to tell the tale. Yeah, tell the tale. Yes, that is more important. Yeah. I mean, that is the way one should take the life. हाँ sir. Rather than if it doesn't break you, it makes you. yeah. Anything that doesn't break you makes you. Manish, I believe that same that Mount Abu, you wanted to go to that cyclone mission, that border recce. border recce and the rescue mission, but you were forced to go to the Mount Abu. No, I was not. I was like he went, sir. So when he was telling me that I will do it, I had that intuition. That was the squadron leader Anil Sharma. Anil Sharma. हाँ, तो when he said कि I will go, मेरे को सर मेरे को जाने दो, संडे को मेरे को you let me do this flying, और उसके बाद मंडे को छुट्टी मिलती है सर। संडे को अगर फ्लाई करो तो मंडे को छुट्टी मिलती थी, और मंडे सिनेमा हॉल्स खाली होते थे। तो मैंने कहा कि बीवी बच्चों को पिक्चर दिखा देंगे और संडे को फ्लाइंग कर लेंगे। तो सर ऐसा हुआ कि when he went, मतलब when he decided to go, उस समय से मेरे को थोड़ा एक वो इंट्यूशन सा आ जाता है कि सही नहीं हो रहा है। तो संडे था, नेक्स्ट डे संडे था when he was flying, तो अर्ली मॉर्निंग से आई वाज डिस्टर्ब्ड, मेंटली आई वाज स्लाइटली अपसेट। तो वाइफ ने भी पूछा कि क्या हो गया, मैंने कहा यार he is gone but I don't feel like very comfortable with, मतलब he is going। तो एज इट इज सर 2 बजे मेरे को मेरे कमांडिंग ऑफिसर का फ़ोन आया कि he was supposed to land at a particular helipad at 12 o'clock। कौन थे कमांडिंग अफसर? कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर शर्मा। विंग कमांडर शर्मा। Okay. तो उनका कॉल आया कि he was supposed to land at so and so helipad by 12 o'clock, वो लैंड नहीं किया है, be prepared to launch rescue mission, search and rescue mission। So I was making the map app and all, so there was some delay in allowing us to go। तो फाइनली 7 o'clock सर शाम में, 7 o'clock 5:30 or so we were given the permission to go। तो हम वहाँ जाके फिर लैंड किए नलिया में। वहाँ भी चेंज ऑफ ब्रीफिंग 2-3 बार हुआ। तो करते करते, नलिया इज जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर सर, बॉर्डर के पास है। तो वहाँ भी ब्रीफिंग, पहले वी वर सपोज टू फॉलो द रूट दैट स्क्वाड्रन अनिल शर्मा इज सपोज टू बी फ्लाइंग। तो हमने उस हिसाब से मैप बनाया था। तो उन्होंने बोला नहीं, वो ऑन द बॉर्डर नहीं, बॉर्डर से 1 किलोमीटर अंदर रखे यू हैव टू फ्लाई। वहाँ आपका कोई फेवरेट स्टेशन कमांडर था? कौन था वो नाम नहीं लूंगा। ओके। तो ये उनको पहले भी मैं मिला हुआ था, तो आई न्यू हिज कैपेबिलिटी एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक नॉटिकल माइल नहीं फॉलो करना है, 2 नॉटिकल माइल फॉलो करना है। देन ही रिपोर्टेड इट टू कमांड कि ही वाज फॉलोइंग 1 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बॉर्डर, आई हैव टोल्ड हिम टू फॉलो 2 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बॉर्डर। तो वहां से कमांड से इंस्ट्रक्शन आया कि नहीं, टेल हिम टू फॉलो 5 नॉटिकल माइल्स। मैंने कहा सर यहाँ किसी की जान खतरे में है, मेरे मतलब मित्रगण मिसिंग है, हेलीकॉप्टर इज मिसिंग, आप यहाँ मैप बना रहे हो, उसका जेरोक्स करा रहे हो। तो सर फाइनली 7 o'clock हम लैंड किए थे, 9 o'clock वी वेर गिवन द परमिशन टू टेक ऑफ। तो सर रेगिस्तान में आपको दिन में चीज़ नहीं दिखती तो रात में कहाँ दिखेगी। करेक्ट। तो हम लोग फ्लाई कर, हमें बोला था पर्टिकुलर हाइट पे फ्लाई करने के लिए, 500 फीट के उससे नीचे नहीं आने को। तो सर वी वर डूइंग द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तो मेरे को कान में एक डिस्ट्रेस टोन होता है सर, 1 to 1.5 मेगाहर्ट्ज का ELT, इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर, उसका टोन सुनाई दिया। तो मैंने कहा कि यार मेरे को टोन सुनाई दे रहा है, टेक द बेयरिंग्स ऑफ दिस प्लेस, उसका लोकेशन उसको मार्क करो। तो मेरा इंजीनियर ही सेड सर हमारे पास तो कोई वो है ही नहीं, वी डोंट हैव द इक्विपमेंट टू रिसीव द टोन। मैंने कहा मेरे को लग रहा है टोन आया है और तुम उसको लोकेट करो।
सर तो उस दिन हम लोग वी वेर एट 9 o'clock से लेके ऑलमोस्ट टिल 12 o'clock वी आर नियर पाकिस्तान बॉर्डर, और वहाँ से एक लाइट की चिंगारी आती थी तो हमें लगता था मिसाइल छोड़ा है, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले वी हैड टेकन आउट देयर एयरक्राफ्ट। अगर आपको याद होगा एक नेवल एयरक्राफ्ट था सर, पाकिस्तानी नेवी का, वी हैड शॉट डाउन बाय एक बुंदेला करके, उसको अंडर बुंदेला, ही हैड शॉट डाउन दैट एयरक्राफ्ट। तो देवर आवर अथॉरिटीज वर थिंकिंग कि ऐसा नहीं हो कि वहाँ दोबारा हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर वो अटैक हो। तो उस दिन तो नहीं हम लोग उसको रेस्क्यू कर पाए। नेक्स्ट डे माई फ्लाइट कमांडर एट कम, तो मैंने कहा सर जो मेरे को बेयरिंग जो हमने सेव की है वहाँ जाके देखते हैं। तो वी वेंट स्ट्रेट एंड एट दैट सेम बेयरिंग द एयरक्राफ्ट वाज देयर। Then how did you rescue it? वो सर वो एयरक्राफ्ट वाज ऑलमोस्ट 5 feet पानी में, वो रन ऑफ का जहाँ से रन और सी मिलता है वहाँ बीच में वो 5 फुट पानी में वो गिरा हुआ था। तो वी हैड आवर केबल्स एंड ऑल। उससे जो सर्वाइवर थे, वी लॉस्ट अनिल शर्मा, वी लॉस्ट स्क्वाड्रन अनिल शर्मा, एक स्क्वाड्रन पठान थे, क्रैश में वो मारे गए, और बाकी जो सर्वाइवर्स थे उनको हमने रेस्क्यू किया। मनीष, जब ये सीन आप देखते हो एंड आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो रेस्क्यू की, व्हाट इज दैट गोज इनटू द माइंड दैट टाइम? सर उस समय तो केवल हम लोग का एक हवरिंग कहते हैं, हेलीकॉप्टर में हवरिंग ये होता है कि आपको सेम पोजीशन पे एयरक्राफ्ट खड़ा करना है। तो वहाँ पे आपका गनर जो होता है आपको गाइड करता रहता है कि सर फॉरवर्ड फॉरवर्ड, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, एंड नीचे एक बंदा होता है जो आप उसको पिकअप कर रहा होता है। तो आपके दिमाग में उस समय सर केवल वही रहता है कि यू हैव टू मेंटेन योर पोजीशन, यू हैव टू रिलैक्स। रिलैक्स नहीं करने पे जहाज फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस समय तो केवल ये रहता है। बट इट वाज व्हेन यू सी द डेड बॉडी ऑफ योर ओन पीपल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गो इन योर माइंड, बट एट दैट मोमेंट ओनली टास्क इज देयर इन योर माइंड कि focus task of rescuing the survivors and taking out the dead bodies if at all. हाँ सर। एंड उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद आई बिलीव आपके सीनियर अफसर्स केम टू विजिट द साइट एंड ऑल। हाँ, सीनियर ऑफिसर had come, the chief was there, the CNC was there. और आपने चीफ को बोल दिया था आप कॉकपिट से निकल जाओ? सर ही वेंट एंड सैट इन द कॉकपिट। मेरे को मेरे जो मेरे साथ फ्लाई कर रहे थे मेरे फ्लाइट कमांडर, उन्होंने बोला जाके जहाज स्टार्ट करो। वी वर इन लखपत करके एक हेलीपैड है वहाँ पे थे। तो चीफ एंड ऑल हैड कम इन सम सेपरेट एयरक्राफ्ट। तो मैं जहाज स्टार्ट कर रहा था तब तक देखा कि चीफ इज कमिंग इन द कॉकपिट। तो मैंने कहा सर एक्सक्यूज़ मी, आई थिंक इट्स बेटर टू लेट स्क्वाड्रन मिश्रा जो हमारे फ्लाइट कमांडर थे उनको बैठने दीजिए, उनको फ्लाई करने दीजिए, बिकॉज में कोऑर्डिनेशन काफ़ी चाहिए होता है सर। 2 पायलट्स मतलब फुल ऑपरेशनल पायलट, प्रोफेशनल पायलट चाहिए रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि एक बंदा थक जाता है तो दूसरा बंदा कंट्रोल्स लेता है। तो थोड़ी देर आपके पास कंट्रोल रहेगा, आप जब एकदम ट्रिकी सिचुएशन नहीं है तो द को-पायलट विल टेक ओवर कंट्रोल्स। एंड यू वर द को-पायलट? आई वाज द को-पायलट। ओके। तो मैंने चीफ को बोला सर लेट्स गिव स्क्वाड्रन मिश्रा टू फ्लाई। तो निकलते समय उन्होंने बोला कि को-पायलट हैज थ्रोन मी आउट ऑफ द कॉकपिट। तो So where did you get that courage to ask this thing to a chief? Sir, when you are dealing with your death of your friends, उस समय कोई नहीं दिखाई देता है सर। उस समय ऑर्डर डिसऑर्डर डिसोबेयंस कुछ नहीं होता है। उस समय बस आपको अपने दोस्त, अपने कलीग की, अपने ऑफिसर की जान बचानी, अपने जवानों की जान बचानी, वही दिमाग में रहता है। तो करेज अपने आप आ जाता है। आई नो देयर इज नो डाउट इन दैट। एक और आपने बड़ा चैलेंजिंग रेस्क्यू मिशन किया था जो जहां आपने वही साइक्लोन में मछुआरों को जो आपने सेव किया था। व्हाट वाज दैट? सर ये साइक्लोन आया था 99 में गुजरात में, बहुत भयंकर साइक्लोन आया था। 260 तक तो विंड रिकॉर्डिंग हुई, उससे भी ज़्यादा, मतलब इतना सीवियर साइक्लोन था कि जो सीमेंट के पोल्स होते हैं वो मुड़ गए थे। तो हमें भेजा गया 3-4 दिन से सब मछुआरे देवर मिसिंग। तो हमें भेजा गया था कि मछुआरों को ढूंढने के लिए। तो सेम नलिया से वी हैड गॉन टू रेस्क्यू, गॉन फॉर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। तो सर जब सी में जाते हैं तो साइक्लोन के बाद भी लहरें कम से कम 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट की लहरें उठती हैं। तो पहले तो जीपीएस नहीं होता था सर।
तो हमारे कुछ लोग गए, वो उनको कुछ नहीं मिला तो वो वापस आ गए। एंड क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर बगल में था तो नोबडी वांटेड टू डू द बॉर्डर क्रॉसिंग एंड ऑल। मैंने कहा कोई भी मिले देखते हैं, अगर पाकिस्तानी भी हो कम से कम उसकी जान तो बचा सकते हैं जैसे हो। तो हम लोग जब गए तो देखा एक बंदा का दिखा, मतलब सुई भी नहीं सर, वो तिनके से भी ज़्यादा मतलब कम दिखाई देता है आपके, जब वेव्स ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसमें किसी को देखा वो तैरते हुए टाइप का। तो हमने उसको रेस्क्यू किया, फिर 2-3 लोग और दिखे, तो 7 लोग फट्टों पे पिछले 7 दिन से बह रहे थे। माय गॉड। और उनके पैर में वो जो सॉल्ट इनकर्शन से हो जाता है, पूरा सॉल्ट अंदर घुसा हुआ था, पूरा पैर खून से लथपथ था। तो उनको हमने उठा के फिर नलिया लेके आए थे रेस्क्यू के लिए। और वहाँ आपकी मुलाकात फिर उन्हीं स्टेशन कमांडर से हो गई जो आपके फेवरेट थे? हाँ, मेरे जो फेवरेट थे उनसे हुई। तो वो उनको फर्स्ट एड देने से पहले फ़ोटो खिंचाना चाह रहे थे। तो ऐसा होता है सर, लोग मतलब ऐसा करते हैं। हाँ, आपने जो बुक में शायद कहीं मेंशन किया है कि he was more interested in getting photographed and social media publicity and all. So how did you deny that? Sir, I told him कि पहले इनको कम से कम give them first aid, then you whatever you want to do. He asked me also, you also come. So we'll show that which pilot was there. मैंने सर I am not interested in photograph. ठीक है, मेरा काम था रेस्क्यू करना, मैंने कर दिया है। अब आप इनको फर्स्ट एड दे दीजिए, उसके बाद फोटोग्राफ खिंचा लीजिए। तो फिर वही हुआ, पहले फर्स्ट एड दिया गया। तो बिकॉज मैंने आरटी पे लैंड करने से पहले कह दिया था रिक्वेस्ट इमीडिएट फर्स्ट एड। तो हमारे पास जो जहाज में होता है वो तो हमने दिया, बट दे हैड टू बी बैंडेज्ड एंड ऑल। एक बंदे का हाथ टूटा हुआ तो उसको पता ही नहीं था कि उसका हाथ टूटा हुआ है। तो बट सेम सिचुएशन हैपेंड व्हेन यू वर डूइंग दैट rescue mission on that Pakistan border. That time also that you wanted to fly as early as possible, yes, so that you can make use of that whatever light was there. But उसके बावजूद, आपके रिक्वेस्ट के बावजूद भी आपको स्टक कर दिया। हाँ, वो ये मैप बनाओ और वो मैप बनाओ। दैट वाज वेरी लाइक अब मेरे बंदे स्टक हैं सर। उसके बाद आप मैप का हमें लॉन्च कर देते, एयर में इंस्ट्रक्शन दे देते कि मेंटेन सो एंड सो, वी वुड हैव डन इट। तो एवरीबॉडी इन सच सिचुएशन एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले सेफ। तो प्ले सेफ में फिर या हो सकता था कि शायद हम लोग टाइम पे पहुंचते तो कुछ लोगों की जान बच जाती है। एक और 7 लोग मारे गए तो कम से कम 1-2 होते। मैं सर आपको ये जो इनको जो रेस्क्यू किया था मछुआरों को, तो उसके बाद इनको था कि मेरा काम था इनको नियरेस्ट बेस तक पहुंचाना। उसके बाद उनको बस से आना पड़ता, द्वारका के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि सर हम तो द्वारका से जाएंगे तो ऑलमोस्ट 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे कुछ भी लग सकते हैं, क्योंकि नलिया ऐसे है और मैप ऐसे आता है, यहाँ पे द्वारका है तो बीच में सी है, तो उनको बस से जाने में टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा सर हमें छोड़ दो वहाँ, हमें घर छोड़ दो। तो मेरी ब्रीफिंग नहीं थी इनको घर छोड़ने की। तो मैंने रडार के अंडर कवर करते हुए उनको जाके घर पे छोड़ा, द्वारका में छोड़ा। मैंने कहा कम से कम इनके बच्चे एक दिन ज़्यादा तो अपने पापा को देख लेंगे। तो दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी कि मतलब एक दिन ज़्यादा क्यों, मतलब एक दिन पहले पहुंच जाएंगे। एक दिन पहले पहुंच जाएंगे। इनको तो लोगों ने सोच लिया था कि ये मर चुके हैं ना। तो 6-7 दिन से गायब थे। तो कहाँ फिर उनको लैंड किया होगा बिना सर? द्वारका में एक हेलीपैड था, वहाँ पे एक छोटा सा एयरफोर्स यूनिट है, लिसनिंग वॉच करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हेलीपैड है, दैट इज़ थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हेलीपैड है, बगल में उसके माइक्रोवेव टावर है। तो वहाँ रात में लैंड करना थोड़ा मुश्किल है बिना लाइट के। बट मैंने जब प्रॉमिस किया था तो मैंने वो किया, फिर छुपते छुपाते अपने ही देश में जाके फिर लैंड किया। बट उन्होंने परमिट कर दिया वहाँ, बिकॉज यू नीड ए। मैंने बिना परमिशन के किया था। अच्छा, बिना परमिशन के लैंड भी किया और छोड़ के देन यू गॉट आउट। व्हाट ए ह्यूमन टास्क यू हैव डन। सर वो तो इतने बुरे हालत में थे कि मेरे को देख के उन पे रोना आ रहा था। सोचो सॉल्ट पैर में घुसा हुआ है और पूरा ब्लीडिंग हो रही है। और लोग, कौन सा हेलीकॉप्टर था ये? मी-8 था। मी-8 में तो आ सकते हैं ना 7-8 मी-8 में आ सकते हैं, 24 लोग आ सकते हैं। ओके। सो यू मस्ट बी विद योर को पायलट।
I was with my co-pilot. Okay. But again, taking as a squadron leader that kind of risk against the organization means it is a Sir, humanitarian grounds पे I think everything is fair. forgivable. yeah, no doubt it. And उसके बाद और कहाँ कुछ आपने रेस्क्यू मिशन या कुछ किया? रेस्क्यू तो यही दो हैं सर. ये मेरा एम अचीव हो गया था लाइफ का कि किसी को रेस्क्यू करना. तो मैंने 2002 में मैंने पेपर्स पुट अप कर दिया 10 साल की सर्विस के बाद कि मेरा काम हो गया एयरफोर्स में. और मेरे को अब जिंदगी बचाने के बदले जिंदगी बनाना है. तो मैंने जिंदगी बनाने का काम शुरू किया. तो 2002 के बाद मेरा रेजिग्नेशन 2006 में एक्सेप्ट हुआ. तो उसके बाद से मैं जिंदगी बनाने वाला काम, ये लोगों को थोड़ा रास्ता दिखाने वाला काम, थोड़ा किताब लिखना, भाषण देना, ये शुरू किया. एक चीज़ मैं पूछूंगा, वो जब जहाँ आपने डिसाइड किया था कि मैं ट्री टॉप लेवल पे फ्लाई करूंगा, जल्दी से पहुंच जाऊंगा, डे लाइट थोड़ी बची होगी और जल्दी से मैं अपने जो कॉमरेड्स हैं उनको मैं रेस्क्यू कर लूँगा. बट आपको फोर्स किया गया और अदर आपको ऑर्डर किया गया कि भाई आप 5000 फीट पे ही चलोगे, 5 किलोमीटर दूर रहोगे. एंड यू got in a very angry state that time, and you just shut the door and moved out of office, the operation room. Operation room. So how did you manage that anger that time? सर गुस्सा तो बहुत आया था जब ये नाटक हो रहा था कि 1 नॉटिकल माइल नहीं, 2 नॉटिकल माइल, 2 नॉटिकल माइल नहीं, 5 नॉटिकल माइल. तो वहाँ के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर थे, ही वाज विंग कमांडर रंगास्वामी. Okay. तो ही न्यू कि तो कुछ गड़बड़ चल रहा है. तो ही वाज वन हु लेफ्ट केप्ट ए हैंड ऑन माय शोल्डर एंड सेड दैट आई नो हाउ यू फील, बट यू नो बॉस इज बॉस, तो मानना तो पड़ेगा ही. तो यू कांट गेट एंग्री लाइक दिस. तो उन्होंने मेरे को काफ़ी समझाया कि वी आर ऑल्सो फेसिंग इट, तो यू ऑल्सो गल्प इट डाउन. तो so manage the anger, because otherwise in a anger situation इस तरह का रेस्क्यू मिशन करना is not all that easy. नहीं, ये उस समय जल्दी रहती है ना कि अब किस हालत में आप क्रैश साइट देखोगे, क्या देखोगे. और दिन में होता तो हम लोग शायद पिकअप कर लेते, बट रात हो गई. रात में मेरे को जहाँ 5000 फुट से नीचे आता था तो वहाँ पे आरटी पे कॉल्स आने लगते थे, क्लाइम बैक टू 5000 फीट. तो वो दैट वाज वेरी डाइसी टू मेंटेन. सो मनीष, फाइनली जब आपने ये अच्छे खासे सक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन कर लिए, लोगों की जान बचा ली, देन यू डिसाइडेड कि चलो अभी मेरा काम हो गया एज ए पायलट, एंड यू केम डाउन ऑन CPST. सो हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट वाज टू चेंज द यूनिफॉर्म टू द सिविल लाइफ? सर इट वाज प्रेटी डिफिकल्ट. लाइक आई वाज टेलिंग यू कि मैं वहाँ से निकल के तो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन समथिंग. तो लोगों ने कहा कि कुछ एक्सपीरियंस कर लो कॉर्पोरेट में तो तुमको अच्छा रहेगा. तो NIIT करके कंपनी है, IIT सिखाती है. तो वहाँ आई ज्वाइन एज सेंटर हेड. तो वहाँ भी मैं बच्चों को मोटिवेट ही करता रहता था. इंस्ट्रक्टर्स को बोला था कि मैं वो 5-5 मिनट दो अपने क्लासेस का. तो वहाँ पे मेरे को एक मिली, वो शी वॉज हेड ऑफ द एडम. तो बोली आपको मोटिवेट करना इतना अच्छा लगता है, व्हाई डोंट यू राइट ए बुक. तो उन्होंने मेरे को एक इंट्रोड्यूस कराया वो अपने फ्रेंड से. वो राइटर फोर्स करके एक कंपनी है दैट इज़ इनटू राइटिंग. तो मैंने उनको अपना प्रपोजल भेजा कि एक किताब मैं लिखना चाहता हूँ. तो दे हैड अग्रीड विद दैट. तो मैंने वो जब वो तैयार हो गए तो मैं क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स ढूंढ रहा था कि कभी तो कुछ क्रिएटिव राइटिंग किया नहीं है, कोई कोर्स कर लेता हूँ. तो एक कोर्स मेरे को दिखा इंटरनेट पे जॉन हरिचरण का, दैट ही वाज कंसिडर्ड द महागुरु ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. तो उनके बारे में पता चला. तो हिज फ्रेंड्स वेयर लाइक दीपक चोपड़ा वॉज हिज फ्रेंड, और प्रिंस फिलिप वॉज हिज फ्रेंड, मोहम्मद अली वॉज हिज फ्रेंड. तो वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज कंसिडर्ड द one of the top few influential people in America. Okay. तो उनका क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स था. तो मैंने उनको लिखा, ईमेल लिखा है कि जॉन आई एम सो एंड सो, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम एयरफोर्स, आई कांट अफोर्ड योर कोर्स. तो इधर आप मेरे को EMI पे करा दो कोर्स, या फिर कुछ कंसेशन दो जो मैं कोर्स कर सकूँ. तो एज यूजुअल उनका रिप्लाई आया नहीं. तो
तो मैंने कहा, तो मैं उनका जितना ऑनलाइन फ्री में जितना मटेरियल था क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर, उनका वीडियोस था और उनकी बुक्स थी, 3-4 किताबें, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं. देयर इज अ बुक कॉल्ड दैट अंडर द टैमरिंड ट्री एंड व्हेन यू कैन वॉक ऑन वाटर टेक द बोट. ऐसे 3-4 किताबें थी, वो पढ़ी. उसके बाद उनको लिखा है कि जॉन, ये मेरा सबसे अच्छा ईमेल लाइफ का है. तो उनको मैंने लिखा कि जॉन, योर फुल नेम इज जॉन हरिचरण, you are somehow, you must have been connected to India and you would have read Hindu mythology. तो मैंने कहा कि आपने एकलव्य का नाम सुना होगा, तो जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना है, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है. तो मैंने किताब लिखनी शुरू की. तो सर यू वोंट बिलीव, उनका 10 दिन 7-8 दिन में मेल आया कि मनीष, यू राइट द बुक, आई विल राइट द फॉरवर्ड फॉर यू. And he is like, whose books have been translated into so many languages, millions of copies sold. उनसे कोई कनेक्शन नहीं सर. और उन्होंने He wrote forward. हाँ, इसमें ये. So, gentlemen, Manish right now, after a Air Force pilot, he is a author, and he has written 3 books by now. And the books Manish would like to show you. This is one of them is Be Your Own Pilot. Means life में become your own pilot. Don't be a football of others. Live your life. Okay. You may like to show the other 2 books also. And these are very motivational book. The other one, just show that. Yeah. So some of the books which wonderful books I believe, and you must lay hand on them and read that. Yeah. सर इन्होंने, मैं जस्ट वांट टू रीड एक छोटा पैरा. इन्होंने लिखा है, जॉन हरिचरण का वो है फॉरवर्ड में, माई सजेशन इज दैट यू गेट योरसेल्फ अ कॉपी ऑफ दिस बुक, रीड एंड रीड इट. आई थिंक यू विल फाइंड द आंसर्स टू प्रॉब्लम्स चैलेंजिंग यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल. एंड व्हाइल यू आर एट इट, पिक अप ए कॉपी फॉर समवन नियर एंड डियर टू यू, शेयर इट विद दोज यू लव, दे विल बी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल. तो बहुत अच्छा फॉरवर्ड लिखा था इन्होंने. तो So, as far as motivational speaker and writer you are concerned, where are you now? Yes, sir, I'm on my 4th book. Okay. 4th book लिख रहा हूँ. This is not inspirational. This is, जितनी बदमाशियाँ की है, जैसे आपको बताया कि रडार वाला के रडार के अंदर से छुप के हम अपने ही देश में हमने मतलब चोरी की लोगों को अपने घर तक पहुँचाया. तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स का मैं एक किताब लिख रहा हूँ. अभी तो मैं कॉलिंग इट माई एनेक्डोट्स. तो देखते हैं कहाँ तक जाती है. Very good. Anything would you like to say to our viewers, those who want to become a pilot? Yeah, I want to tell the viewers that if you are really interested in becoming a pilot, you know, जैसे मैंने पहले अपने थोड़े पहले बताया था कि आपका मैथ्स और साइंस अच्छा होना चाहिए, और go to a reputed company for your flight training. अगर उससे भी अच्छा आप वो नहीं करना चाहते तो आप NDA के थ्रू जा सकते हैं, CDS के थ्रू जा सकते हैं टू बिकम ए पायलट. AFCAT एक एग्ज़ाम होता है पास करने का, वो करके आप पायलट बन सकते हैं. Manish, you have mentioned few things like belief engineering and emotional mastery. Can you explain to our viewers? Belief engineering, sir, everything that is there. आप जो भी आज हो अपने बिलीफ के चलते हो. तो बिलीफ कैसे इंजीनियर करना होता है, कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है वो बिलीफ में. जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ. देयर वाज अ टाइम, अभी तो मेरे को नाम याद नहीं है, जो 1 मिनट 1 माइल 4 मिनट से कम में नहीं होता था पहले. तो जिसने रिकॉर्ड तोड़ा तो अपने दिमाग में वो दौड़ता रहता था कि दिमाग में वो ऐसे ये करता था. मैंने एक टेक्निक, आई फाउंडेड ए टेक्निक कॉल्ड IVR, is idealize, visualize, realize. Idealize your most ideal condition. जैसे you want to own an office, तो इमेजिन कीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपके नाम का प्लेट लगा हुआ है, यू आर सिटिंग ऑन ए कंफर्टेबल चेयर. दैट इज विजुअलाइजेशन. तो आइडियलाइज, विजुअलाइज, रियलाइज. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ बिलीफ इंजीनियरिंग. ओके. एंड दिस अनदर थिंग, इमोशनल मास्टरी. इमोशनल मास्टरी में ये होता है सर कि यू हैव टू, इमोशंस आर योर फ्रेंड्स नॉट योर एनिमीज. तो आपको एवरी टाइम देयर इज समथिंग नोन एज इमोशनल गाइडेंस सिस्टम. जैसे जहाज में होता है ट्राइन एक्सप्लेन, जहाज में ILS होता है, वो होता है अप एंड डाउन, उसमें मीटर होता है कि इफ़ यू आर बिलो द ग्लाइड पाथ और यू आर अबव द ग्लाइड पाथ.
तो लाइफ में भी यू आर बिलो योर ट्रैक और अबव योर ट्रैक. तो यू शुड नो आप जो इमोशन जो फील करते हैं कि अगर आपको एंगर आ रहा है तो यू शुड नो दैट एंगर के लिए आपको क्या करना है. जैसे कहते हैं 10 तक काउंट करो या ये करो. तो मेक इमोशंस योर फ्रेंड. दैट इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल मास्टरी. Okay. And then somewhere you have mentioned getting into the zone of genius. How do you personally deal with fear, stress, and uncertainty? Getting into the zone of genius का है कि we have a zone of incompetence, zone of excellence and zone of genius है. हम zone of incompetence, zone of competence, zone of excellence and zone of genius. Zone of genius ये होता है सर कि आप you are meant for certain thing. You are neurologically meant to do something at the best. हम क्या होता है जैसे मेरे को जैसे कोई आईटी की चीज़ नहीं आती है, हम उसी में दिन भर लगे रहते हैं. जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे को अपना प्रिंटर सेटअप करना था तो वो पूरा दिन भर लगा रहा, उससे नहीं हुआ. तो फिर उसने बगल वाले एक बंदे को बुलाया, उसको कुछ पैसे दिए, उसके 1 घंटे में उसने कर दिया. तो हम जिंदगी भर लगे रहते हैं, जो चीज़ हमें नहीं आती है उसी में टाइम बर्बाद कर देते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स आवर एक्चुअल जो जिसके लिए हम पैदा हुए हैं. सेम चीज़ वही कि if you can seek help from somewhere, why not? Why not? So why do you have to waste your time? Why do you have to play in the zone of incompetence? Yes. जो चीज़ you know कि नहीं आती है, जैसे मेरे को पीपीटी बनाना नहीं आता था, तो आई यूज्ड टू गिव इट टू समबडी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम. आई विल डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव. दैट इज माय जोन ऑफ जीनियस. Okay. That is what it means. Yes. Okay. This is Manish something like one word to describe. Okay. How do you describe your, for example, Air Force? Wonderful experience. Okay. Most defining moment of your life? Having my son. Oh, fantastic. Fear or intuition, which do you trust more? The intuitions any day. Fantastic. One habit that changed your life? Walking. Okay. A book everyone must read other than yours? The 7 Spiritual Laws of Success by Deepak Chopra. Okay. Manish, it has been really eye-opening conversing with you on your rescue missions, very intensive rescue missions, your life and your life after the uniform. And it's really inspiring, and I am sure that this conversation जो लोग भी सुनेंगे, जो हमारे viewers हैं, they will find it very enriching and very helpful. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you.